दे देना। हेलो। Rahul Malik, good morning. Hopefully everybody is doing good. और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक. तो भारत माता की. तो मालिक. Malik, we have on the discussion, मैं अभी stability and expansion का starting point refresh नहीं मारा हूँ. We will discuss that one tomorrow. Okay, so I am directly coming on to the point that is called expansion strategies of two types. One is internal growth strategy, one is external growth strategy. Internal growth strategies are having total 2 points. One is intensification and one is a diversification. Intensification we have discussed total 3 point. The third point only was the confusing point. We are discussing once again. एक छोटा सा सेट ऑफ कर लेते हैं आज वापस एक बार. सबसे पहला कॉन्सेप्ट था मार्केट पेनिट्रेशन. द सेकंड वाज मार्केट डेवलपमेंट एंड थर्ड वाज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. Market penetration stands to be very easy. Market development stands to be very easy. Okay, only in market development we need to remember the word that is called related market rather than new market. You just need to remember that particular concept. After that, we are discussing about the next concept that is called product development. I told you to write this one. I have shared this data on this point. अगर आपने लिखा होगा तो fair enough, नहीं लिखा होगा तो copy कर लेना. Okay, once that is done. But most important in product development, it can get confused with one more diversification that is called concentric diversification. Now, when I am discussing if it is concentric or product development, the most important concept is related. Now, the question comes how the relationship is ready, how the relationship is there between the products. Suppose I am preparing a new product and that new product is related in terms of PTM. If the new product is related in terms of PTM, what is PTM ka full form? Process, technology, market. If it is related, either of it, it is or and or. Either it is related with process, either related with technology, whether it is related with market. The product are called related. The product are called related. Now the biggest point you need to remember is whenever the product development question comes in your examination or whatever during the question bank or RTP, whenever the product development will have one word clearly that the new product which is related of the product, existing product is sold to only which consumer? Existing or current customer. When I'm saying current customer, the person who is buying the original product is also buying the new product. That is called concept of product development. उसको technically मैंने आपको कल समझाया था. Suppose if you remember that particular example of toothpaste. If I'm manufacturer of toothpaste, along with I started manufacturing of toothbrush, and I'm saying those who are purchasing toothpaste will only get a toothbrush along with it. Okay, I'm not selling toothbrush individually. This concept is what this concept will be called as product development. But if I'm saying I am a manufacturer of toothpaste, now I started manufacturing toothbrush. I'm not discussing any else. I'm not discussing any else. I'm just discussing the toothpaste manufacturer starts manufacturing toothbrush. Okay, that's the simple fundamental rule. The answer will be diversification. तो आपको समझना है product development और diversification को differentiate कैसे करोगे? How you will differentiate? On the basis of customer. If the question says customer है तो किस पे जाओगे? Product development. Else the answer will be diversification. So I hope everybody clear. So in product development, what are the keywords to be remembered? In product development, the first keyword is there is a substantial modification. There is a
substantial modification of which product? Existing product. What is an OFU of substantial modification? What is an OFU of substantial modification? When I am discussing substantial modification, Colgate में नमक है. That is called substantial modification. Substantial modification मतलब dramatic modification नहीं. Substantial, I told you, substantial cannot be measured in percentage, but technically we can assume like 20% odd. तो एग्जाम्पल, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन. ओके, शैम्पू का पाउच, इफ आई एम ब्रिंगिंग फ्रॉम शैम्पू का बॉटल टू शैम्पू का पाउच, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज substantial modification. But if you need to understand, if you remember yesterday's example, I told you I am a manufacturer of shampoo and I am giving in bottle, and prestige point students are not purchasing any bottle. For that purpose, for prestige point student, I brought a shampoo ka pouch. Now this will be product development? No, this will be diversification, because the customer base is becoming a new one. It is not an existing customer. I hope this point is very clear. But technically, when I'm saying I'm changing the packet also, I'm changing the formation also, that is also called a product development. Acha, 5-star. If you're aware, 5-star we are getting a 10 rupees packet for 5-star. 5-star milta 10 rupees ka. Now because of Diwali, I am bringing a 5-star into multiple packets where 5 5-star are together packed. Now 5 5-star will be costing 50 rupees, but packing another element I'll be taking and I'll be recovering 100 rupees of it. I'm selling a celebration pack, if you remember. If you're aware, in Diwali we always discuss about Diwali ho, Raksha Bandhan ho, they always market like that. This is a celebration pack. Now this concept will be called as product development, but if it is sold to only which customer? Current customer. But if there is this is also called a change. Now you will be saying, sir, it is only packet change, but this is a change in the product. Sir, where product is getting changed? The product is the same manufacturing, it doesn't matter. But technically this manufacturing, even a packet change will be a part of substantial modification. I hope everybody clear, Malik? So remember this product development and don't worry about the concept of product development. Question से और clear होते जाएगा. But मैंने क्या बोला, product development कब लगाओगे? When you will apply product development? When you will apply product, in which question? What is the thing you will find in question? Then only you will apply product development. Okay, only if it is sold to current customer. If the current customer is silent, and you're getting the answer is related. You're getting the answer is, see, understand. Okay, एक simple fundamental rule. Please understand एकदम आराम से. If same product, same market, खत्म हो गया ना story. Okay, if market is new but related one. Okay, this is also very clear. The problem is here we are changing the product features. Now question here, product we are manufacturing, if there would be only this answer, substantial change or modification in existing product, this would be much better. But the problem created by which line? Creation of new. This line created a problem for us. Creation of new but related. अगर ये line नहीं होती ना मालिक, ये line नहीं होती ना, okay, a shirt manufacturer, if starting a pant manufacturing, it would be directly going in concentric. But the problem is they have used this line in the content, and for this purpose we go, मतलब it is technically correct ना, correct new product निकाल रहे हैं, but which product? Related. तो इसीलिए तो related product आ गया तो अपने पास दो आंसर होते हैं. तो अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन बोल रहा है भाई शर्ट मैन्युफैक्चरर स्टार्टेड बूट मैन्युफैक्चरिंग, द आंसर विल बी डाइवर्सिफिकेशन. शर्ट मैन्युफैक्चरर स्टार्टेड पैंट मैन्युफैक्चरिंग, डाइवर्सिफिकेशन. टूथब्रश स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूथपेस्ट, डाइवर्सिफिकेशन. इफ यू रिमेंबर ओरल बी, ओके, वो कॉन्टेक्स्ट है, डाइवर्सिफिकेशन हुआ. ये कौन सा हुआ? विच डाइवर्सिफिकेशन? कॉन्सेंट्रिक. अच्छा, टूथब्रश मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड स्टील मैन्युफैक्चरिंग. Now this is not concentrate, related to PTM. A brush can be of steel also, sir. Okay, don't. But this is called which concept? Conglomerate. Now conglomerate will never ever merge with the product development, ना? Why? Product development के साथ mix क्यों नहीं होगा conglomerate? Because यहाँ पर related है ही नहीं ना. तो related रहा तो problem है. तो कौन से diversification में problem है हमें? We are facing a problem in concentric and product development. 99% of time, okay, question will be silent on customer. 99% of time question will be silent on, यानी example, after solving 100th question you will find out one question on product development. I hope you are getting the point. तो product development, तो 99 question किस पे रहेगा फिर? कौन सा diversification? Concentric. I hope everybody clear, मालिक? पक्का? ठीक है. Okay, theory को अपन बाद में read करेंगे. Okay, first of all, is this copied by you? ये content लिख लिया आप लोगों ने? पक्का? ठीक है. ओके, अब एकदम अच्छे से सुनिए, शिद्दत से सुनिए.
I'm using total three examples, which will be using it out clearly, and after that I'll enter into diversification. First I will discuss the module content. Module content need to be remembered. What are the keywords to be remembered? After that we will discuss, okay, or detail wala point. But first of all, make it clear with an example. Suppose I am a toothbrush manufacturing. टूथब्रश मैन्युफैक्चरिंग, ओके, अच्छा कौन सा टूथब्रश? टूथब्रश कौन सा? ओके, यस्टरडे अपन डिस्कस किया है, प्लास्टिक वाला भी हो सकता है, वुड वाला भी हो सकता है. वुड वाला इज नथिंग बट इको फ्रेंडली. टेक्निकली इको फ्रेंडली मतलब वुड को तो काटना ही पड़ेगा ना. ओके, इको फ्रेंडली बस किस एंगल से है? डिस्पोजिशन. while disposing that brush will be eco friendly. Now listen carefully. What I am doing, I am a manufacturer of toothbrush, okay, which is a eco friendly toothbrush, matlab wood manufacturing. So what is the process of manufacturing? I am having a factory in which, okay, I take a raw material, two types of raw material, one is wood and one will be bristles. Okay, मान लो मैंने ब्रश के ऊपर का, ये दो मैं किससे लेता हूँ? सप्लायर. तो what are the two kinds of supplier for me? वुड वाला और ब्रिसल्स वाला. ब्रिसल्स आर डेफिनेटली प्लास्टिक वन, बट रिलेटिवली इको फ्रेंडली प्लास्टिक. अपन एज्यूम ऐसे ही करेंगे. तो दो सप्लायर है मेरे पास. ओके, आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस चेन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, ओके, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग ब्रश, और फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ऑर्डर द आई विल ऑर्डर द रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल ऑर्डर करूंगा. आवाज नहीं आ रही है? रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल किससे ऑर्डर करेंगे? सप्लायर. रॉ मटेरियल आया मेरी फैक्ट्री में. ओके, फैक्ट्री के स्टोर हाउस में आ गया, गोडाउन में आया. गोडाउन के बाद इट वेंट इनटू प्रोडक्शन प्रोसेस. प्रोडक्शन प्रोसेस में ओके, वुड कट के जो ब्रश की साइज है, ब्रिसल्स कट के ब्रश में फिट करने का प्रोसेस होता है. वंस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रश इज डन, ओके, ब्रश बन जाते हैं. पैकिंग होता है ना. आफ्टर पैकिंग, ओके, इट इज स्टोर्ड इन ए फैक्ट्री. आफ्टर दैट इट इज डिलीवर्ड टू आइदर टू पर्सन, वन इज रिटेलर और वन इज डीलर. ओके, रिटेलर और डीलर. आई होप एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट रिटेलर डीलर. डीलर को गया तो एक नेटवर्क है, ही विल एंश्योर दैट ऑल रिटेलर इज गेटिंग, एंड इफ देयर इज नो डीलर नेटवर्क, आई माई सेल्फ विल बी गोइंग टू रिटेलर्स. दिस इज अ प्रोसेस. आई होप दिस अंडरस्टूड द प्रोसेस. तो प्रोसेस क्या है मैन्युफैक्चरिंग का? फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड फिनिश गुड्स, एंड फिनिश गुड्स इज डिलीवर्ड टू डीलर और रिटेलर. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, what I am asking you is, I am starting a manufacturing of wood only. I want to replace my supplier. I am asking for supplier on a time delivery. I am asking for a quality delivery, and I am not getting a confidence. Even cost is increasing. Even what is increasing? Cost is increasing. Listen carefully everyone, it is increasing cost because वो delivery वगैरह ये कर रहा है. I analyzed myself, I being a CEO of the company, I analyzed and I identified the major cost we are incurring here because of supplier. What is the logic behind incurring so much of cost? Doesn't make a sense. ये मैंने कुछ एनालाइज किया. आफ्टर एनालाइजिंग वन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई केम टू नो, लेट्स स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुड ओनली. यानी हम लोग ही खुद जंगल में जाएंगे. We'll go in the jungle, we'll cut the wood and we'll give the somewhat shape and we'll come into the process. Yani what I am starting, which work I am starting? I am starting the work of, I am starting the manufacturing of wood. मतलब कौन सा, किसका manufacturing? हम खुद जो कर रहे थे वो या मेरे supplier का? I am going in the shoes of supplier. So my question, okay, so think logically. In a wooden toothbrush, do you think wooden manufacturing is also related? Because it is related through PTM. What is PTM? Process, technology, market. Process. Because process, अगर process देखोगे, अभी process समझा ना मैंने, process में से पहला process ही वही है ना. तो मेरे को बताओ, ये concept, ये किस में जाएगा? Is this product development or diversification? अच्छा, conglomerate तो नहीं होगा. I hope conglomerate तो नहीं होगा. Everybody agree? Anybody in conglomerate? नहीं, सप्लायर का काम ले रहा भाई, कॉन्ग्लोमरेट है ही नहीं, बिकॉज पीटीएम से लिंक्ड है. एनीबडी इन मार्केट पेनिट्रेशन? नो. एनीबडी इन मार्केट डेवलपमेंट? नो. ओके भाई, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है क्या ये? आई एम डेवलपिंग वन प्रोडक्ट विच इज क्रिएटिंग ए न्यू वन बट रिलेटेड. पर वो हम किसका काम कर रहे हैं? सप्लायर. तो इसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं डालते, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट? डाइवर्सिफिकेशन. एवरीबडी, कौन सा डाइवर्सिफिकेशन? कॉन्सेंट्रिक. Listen carefully. Now concentric says, अच्छा, example you understood ना? I'm giving 2-3 example. First adapt with the examples. तो पहला example समझ में आया. Okay, one more example. Okay, assume करो I'm not going in supplier. Supplier के shoes में नहीं जा रहा हूँ. Supplier जा रहे हैं, अच्छा सस्ता आ रहा है. काहे के लिए cost incur करके, capital invest करके we should create a मगजमारी. Let supplier do the things. Supplier is delivering the goods. Okay, then we are manufacturing the product.
and after that what we were doing, we were giving it to distributor. Rather than we thought giving to distributor and retailer, they are selling with a margin. Let's do one thing, we create our own shops. We create our own shops. अपनी ही दुकान खोल लेते हैं ना, तो जो retailer का margin है, distribution का margin है, that will be on in our bags ना मालिक. I hope you are getting the point. Okay, now I am starting this. Okay, यानी क्या चालू किया मैंने क्या चालू किया? Okay, what I did, I implemented a shop where I can sell the particular goods. Okay, so don't you think it's an expansion? Expansion है या stability है? Expansion है, ये expansion ही है, stability थोड़ा ना है. Okay, ये retrenchment तो नहीं है ना. Okay, तो अपने पास एक ही आंसर रहेगा, expansion. Now expansion में ये कौन सा concept है? My first point, is it market penetration? No. Market penetration is selling same goods and same point. तो ऑफर्स का है, अगर आपको तीनों ऑफू याद है, तीनों ऑफू याद होगा, तीनों ऑफू के बाहर ही मत जाइए आप. ओके, मार्केट पेनिट्रेशन नहीं है. इज इट मार्केट डेवलपमेंट? नो. आई एम, अरे रिटेलर जिधर बेच रहा है वही मैं खुद चालू कर रहा हूं. तो सर इसको आंसर को प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी नहीं बोल सकते, इसको आंसर को क्या बोलोगे आप? डाइवर्सिफिकेशन. तो नाउ अंडरस्टैंड, डाइवर्सिफिकेशन में दो टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन थे. कौन से? वन वाज कॉन्सेंट्रिक, वन इज कॉन्ग्लोमरेट. तो राइट नाउ आई एम ऑन डिस्कशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक. आई एम ऑन डिस्कशन ऑफ concentric. Come to another example. I am a car manufacturing company, Tata Motors. To manufacture car, do I require tires? I am not tire manufacturing company. MRF is tire manufacturing company. What we do, okay, is we take the tires from MRF. We take the tires from MRF. Everybody with me? Okay, now tell me, MRF is who? For me, who is for me? Supplier. Now rather than we are purchasing the tire from MRF, we started our own factory for Tata Tires itself. Now question is, are we starting a manufacturing unit? Is this expansion? But the question is it with expansion? Concentric. But concentric में नाम क्या होगा वो बाद में डिस्कस करते हैं, पर समझ में आ रहा है कि concentric. अच्छा, टाटा कार बना के किसको देता है? डीलर्स को. टाटा is saying we will open our own showroom. Will open our own showroom. This is called a concept of again concentric because of PTM. PTM को लिंक करो. PTM का फुल फॉर्म टेक्नोलॉजी मार्केट. मेरे को बताओ, अगर मैंने आपको एक चीज समझाई है फ्रॉम लास्ट 10 मिनट्स आई एम एक्सप्लेनिंग यू. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग यू रॉ मटेरियल्स ऑपरेशन अंडरस्टूड ना? ऑपरेशन मींस यू आर प्रोसेसिंग समथिंग एंड देन डिलीवरिंग द फिनिश गुड्स. तो रॉ मटेरियल, ऑपरेशन, फिनिश गुड्स. ओके, डोंट यू थिंक इट इज फिटिंग इनटू प्रोसेस? Okay, I am starting a manufacturing of raw material. This is also a process. Okay, I am starting where the consumption of finished goods take place. I am also starting that one. So it is which diversification? Concentric because of relation with PTM. PTM का full form में से पहला point process है ना. तो concentric बोलता है relation है. concentric बोलता है रिलेशन है. कॉन्सेंट्रिक बोलता है देयर इज अ रिलेशन बिटवीन प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, मार्केट. एंड कॉन्सेंट्रिक इसलिए बोलता है आई मे बी एंटर इनटू टू टाइप्स. लिसन केयरफुली, आई मे बी एंटर इनटू टू टाइप्स. यानी किसके टू टाइप्स और है? कॉन्सेंट्रिक. फर्दर टू टाइप्स ऑफ व्हाट? कॉन्सेंट्रिक. सर व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक? वन इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन एंड वन इज हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन. तो मुझे चाहिए कॉन्सेंट्रिक के कितने प्रकार? दो. आराम से जाइए. कॉन्सेंट्रिक के कितने प्रकार? दो. नाम? वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन. आराम से. हाँ, बिकॉज सेम लेक्चर विल बी टुमारो. बिकॉज टुमारो विल बी गोइंग इन मर्जर एक्वेशंस. मर्जर एक्वेशन, द आंसर इज सेम, ओनली वर्डिंग्स विल चेंज. द आंसर इज, तो मेक श्योर, बस वो क्या डिफरेंस होगा कॉन्सेप्चुअल विल डिस्कस टुमारो. पर राइट नाउ ये कॉन्सेप्ट दिया तो क्लियर करो. वापस ये ओके, डाइवर्सिफिकेशन आर इनटू टू टाइप्स. व्हाट आर द टू टाइप्स? अच्छा, विद डाइवर्सिफिकेशन आई एम डिस्कसिंग नाउ कॉन्सेंट्रेट. अच्छा, टोटल अगर मैं खाली ऐसे बोलूं डाइवर्सिफिकेशन कितने प्रकार के? कौन से? कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट. नाउ आई एम गोइंग ऑन कॉन्सेंट्रिक ऑफ टू टाइप्स. कॉन्सेंट्रिक ऑफ टू टाइप्स. वन इज वर्टिकली एंड वन इज हॉरिजॉन्टल. नाउ अंडरस्टैंड वर्टिकली दिस इज वर्टिकल लाइन. दिस इज वर्टिकल लाइन. अरे वो तुम्हारे अकाउंट के इसमें से मत देखो, मेरे इसमें देखो. अभी व्हाट आई एम डिस्कसिंग वर्टिकल का लॉजिक समझने की कोशिश करो. फिर या तो ऐसे भी ले लो यार, पर वो फिर मेरे को ऐसा होना पड़ेगा. समझ रहा?
और डायग्राम, मैं तो आपको एक्सप्लेनेशन, तो अभी मेरे लॉजिक से समझने की कोशिश करो. व्हाट इज द वर्टिकल राइट नाउ? वर्टिकल कॉन्सेप्ट, ओके, वी आर इन द प्रोसेस. इफ आई एम इन द प्रोसेस, आई एम इन द प्रोसेस लाइन, आई एम इन द, आपका प्रोसेस लाइन कैसा होता है? अच्छा, आपके वर्टिकल में से देख लेते हैं. आपके वर्टिकल में सबसे पहले क्या आता है? आपके वर्टिकल में से सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? दे माई, क्या यार, सबसे पहले प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या आता है? Then we do operation, process, operation, and after that what we develop? Distribution मतलब finished goods. अरे यार 3 वर्ड, raw material, operation, finished goods. Raw material, right now our core competency is in operation. I hope everybody clear. I started developing in the hierarchy, therefore it is called vertical. Therefore it is called vertical. I hope vertical is clear. So vertical matlab you are going in the chain of the process. Now the problem matlab और एक point is there. In vertical either you can move backward or you can move forward. There are two things. Okay, यानी vertical में भी दो प्रकार. What are the two types in vertical? Forward integration, backward integration. Once again, okay, first of all, how many types of diversification are there? What are the two types of diversification? Concentric and conglomerate. Online पढ़ लोग, I hope everybody is listening, man. Thor man. Okay, first, how many types of diversification? Concentric, conglomerate. In concentric, two more types. One is vertical, horizontal. What is horizontal? बाद में देखेंगे. पर vertical clear है? Vertical मतलब ये लाइन में बैठ रहे. Okay, in vertical you have two types. One is backward, one is forward. वापस. Backward, forward. Backward integration, forward integration. Backward integration, forward integration. I started the manufacturing of suppliers. Backward integration. Simple answer. You are going back in the chain. I hope इसमें back in the chain ऐसा sequence आपको, क्योंकि vertical तुम्हारे दिमाग में ऐसा vertical बैठा है. तो back in the chain is backward. Coming forward, forward. तो forward integration. तो forward integration, backward integration किसका पार्ट है? वर्टिकल का. किसका पार्ट है? वर्टिकल. कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग टायर्स, बैकवर्ड इंटीग्रेशन. कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड द शोरूम्स. कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड स्टील मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो. बैकवर्ड या कॉन्ग्लोमरेट? कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड स्टील मैन्युफैक्चरिंग. कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग. कॉन्ग्लोमरेट और बैकवर्ड. ओके, टेक्निकली वो स्टील अगर कंज्यूम कर रहे होंगे वो लोग तो फिर बैकवर्ड, लेकिन स्टील मैन्युफैक्चरिंग करके स्टील बेच रहे हैं, कॉन्ग्लोमरेट. तो यानी अपने को सप्लायर में कब जाना है? बैकवर्ड में कब जाना है? इफ वी आर नॉट सेलिंग, वी आर यूजिंग. समझ में आया? इफ वी आर मैन्युफैक्चरिंग स्टील सो दैट वी कैन कंज्यूम दैट स्टील इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स विच वी आर इनटू इट, देन इट इज बैकवर्ड. तो बैकवर्ड के लिए सबसे क्राइटेरिया क्या है? पहला बड़ा क्राइटेरिया, एक तो पहले पीछे जा रहा हूं, लेकिन एट द एंड ऑफ द पीछे जाने के बाद वो सप्लायर का जो बना रहा हूं वो मेरे लिए ही बना रहा हूं ना. दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन. एनीबडी व्हाई वी गो फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन? फर्स्ट इज कॉस्ट. ओके, डोंट यू थिंक दैट मार्जिन व्हिच इज सप्लायर एंजॉयिंग, नाउ आई विल बी एंजॉयिंग दैट मार्जिन. ओके, कॉस्ट पर यूनिट और कम हो गया ना. आई होप झेपिंग मालिक. तो मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक इफ यू वांट टू गो, देखो सब लिंक चालू होगा नेक्स्ट वीक जब मैं बोलूंगा मुझे कॉस्ट लीडर बनना है. इफ आई वांट टू, आई एम डिस्कसिंग यू, आई वांट टू बिकम ए कॉस्ट लीडर. अच्छा, आई होप यू रिमेंबर द हायरार्की ऑफ स्ट्रैटेजीज. कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज व्हिच वी आर इनटू डिस्कशन. Next is business strategies. One of the discussion is cost leader. If corporate level is saying let's go backward, so what is the target for business level? Become a cost leader. Okay, that's how the structure works. This how the strategic management works. The relationship. इसीलिए क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा. तो अपने को वो दोनों मिक्स ध्यान रखना पड़ेगा. Once again, last time, अगर मैं सप्लायर के शूज में जाता हूं तो बैकवर्ड. पहला रीजन कॉस्ट. खाली कॉस्ट ही रीजन है? What can be the one more reason? What can be one more ground why we should go with supplier? Quality. तो supplier quality नहीं होगा क्या? Okay, हाँ? Availability. Very important point is availability. You will come while doing costing, you will come across one word or one context where material should be available on time.
That will be called as JIT. JIT का फुल फॉर्म इज जस्ट इन टाइम. जस्ट इन टाइम में कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत आगे आएगा, आपको वो नहीं कर. जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है? ओके, आप इमेजिन करो, इफ आई एम हैविंग ए फिनिश गुड्स का ऑर्डर बट आई एम नॉट हैविंग ए रॉ मटेरियल, विल देयर बी, मतलब देयर बी लॉस फॉर मी? दैट नीड टू बी अवॉइडेड. And for that purpose, I need to have an inventory which should be enough so that I can manufacture the products which can be sold out. So for that control, to control over supplier, control over, so we enter into backward. So what are the two grounds for backward? Cost and control. Cost and control of supply chain. Control of supply chain. Answer याद रहेगा? अच्छा, वापस आते हैं. मेरे को बताओ, वर्टिकल, वर्टिकल में कितने पॉइंट है? दो. एक है बैकवर्ड, एक है फॉरवर्ड. बैकवर्ड, why ground, two grounds, cost and, I hope everybody clear. ठीक है, फॉरवर्ड में क्यों जाओगे फिर? फॉरवर्ड, why you enter into forward? अच्छा चलो, लेट्स गिव मोर एग्जांपल. तो यू टेल मी इट इज फॉरवर्ड और बैकवर्ड. अभी और हॉरिजॉन्टल में घुसो मत. हॉरिजॉन्टल लेट मी एक्सप्लेन लेटर ऑन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सीसीडी. आई होप सीसीडी, स्टारबक्स. स्टारबक्स तो सबको ही पता होगा. सीसीडी इंडियन है, स्टारबक्स नेशनल ग्लोबल है. ओके, तो सीसीडी या स्टारबक्स. स्टारबक्स देखा होगा आपने. स्टारबक्स स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी बीन्स. स्टारबक्स, आई होप यू आर एवरीबॉडी इज अवेयर, इट इज इन कॉफी चेन शॉप. तो दे स्टार्टेड कॉफी मैन्युफैक्चरिंग कॉफी बीन्स. कौन सा वाला? बैकवर्ड. पक्का क्लियर है? रिलायंस फ्रेश, दे आर डिलीवरिंग वेजिटेबल्स एट होम. दे परचेज द फार्म एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग वेजिटेबल्स. बैकवर्ड. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. पक्का? ओके. I am having my own farm. And I started the shop which is called vegetable shop. Forward. तो आपको backward, forward आपको ध्यान देना पड़ेगा. Cloth manufacturing company. I hope cloth manufacturing मालूम है ना, कपड़ा. Cloth manufacturing company started shirts manufacturing. Forward. Why forward? याद रखना, यानी if you thought in your mindset that forward means only opening a shop, this is not an answer. Forward can be opening a shop or it can be starting anything which consume your finished product as a raw material. If you are starting anything where your finished product in existing chain is consumed by that particular product, that is also called forward. Okay, the best example वापस बोलते हैं forward का. Shirt manufacturing cloth manufacturing company started shirt manufacturing. कौन सा हुआ? फॉरवर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये पीटीएम में है? हाँ या ना? एवरीबॉडी? तो पीटीएम में है, पर ये किस में जाएगा? फॉरवर्ड. ओके, बिकॉज ये फॉरवर्ड में जा रहा है. आई होप क्लियर मालिक. पक्का? शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टेड पैंट मैन्युफैक्चरिंग और शूज मैन्युफैक्चरिंग. डाइवर्सिफिकेशन तो मेरे को भी पता है. डाइवर्सिफिकेशन चेन, अभी चार्ट बताया ना मैंने तुमको. आई एक्सप्लेन ऑल चार्ट. नरे everybody is having the chart ना दिमाग में. how many types of diversification? concentric, conglomerate. concentric में नाम vertical, horizontal. vertical में which one? okay, one is forward, one is backward. I hope this point is clear at your end. and don't worry sir, ये चार्ट बना लेते अपन. कोई हरी साहब चार्ट दिया हुआ है तुम्हारे पास, सब रहेगा, कोई टेंशन लो. पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो. now tell me what you will write. horizontal. everybody, horizontal. हॉरिजॉन्टल मतलब क्या था? इफ आई ड्रॉ दिस लाइन अ चेन. अच्छा, तुमको हॉरिजॉन्टल, तुम्हारे इसमें लाइन बनाता हूं. रॉ मटेरियल, प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स. बेवड़े लोग लिसन केयरफुली. इफ आई गो दिस वर्टिकल में बट बैकवर्ड. वर्टिकल समझ में आया? हाँ, तुम्हारे एंगल के वर्टिकल, बट दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड. इफ आई स्टार्ट दिस forward. But in finished goods, did you understood this one? Oh, not only a shop, opening a shop is only considered, even the consumption of our finished goods as a raw material is also part of forward. समझ में कुछ आया? यानी example, this finished goods would be consumed as raw material with this point. I am starting this one. This is also called forward. ये समझा क्या? पक्का? Now tell me horizontal का interpretation क्या होता है? Horizontal interpretation क्या होता है? What is meaning of horizontal? Horizontal? अभी हॉरिजॉन्टल ऐसा होगा ना तुम्हारे हिसाब से. कैसे वो बताओ मेरे को. हॉरिजॉन्टल ऐसा ना, ऐसा. तो तुम बना क्या रहे हो अभी? व्हाट यू आर related is there. What you are manufacturing right now here in this process, what you are manufacturing? This one na, this is your manufacturing, mainly a finished goods actually,
पर अपन इसको बात कर, ये तुम कर रहे हो ना, यही एग्जैक्टली तुमने वापस चालू किया और एक्वायर किया. आइदर यू आर स्टार्टिंग दिस और एक्वायरिंग दिस. दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल. सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल? एक्सेप्ट बेस्ट एग्जांपल, टाटा मोटर्स एक्वायरिंग महिंद्रा मोटर्स. टाटा मोटर्स एक्वायरिंग, इट इज हॉरिजॉन्टल बिकॉज इट इज सेम द प्रोसेस. ये ऊपर नीचे जाना इज वर्टिकल, सेम हायरार्की, हॉरिजॉन्टल. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. अच्छा, ये तो मैंने एक्विजिशन का एग्जांपल दिया एंड आई यूज द वर्ड एक्विजिशन, देयरफॉर आई टोल्ड यू रिमेंबर बाय टुमारो, because tomorrow we'll be using the word mergers and acquisitions. Right now this diversification process need to be very clear at your end. That's diversification end, and innovation is the last point to be focused on. So that's your end with diversification and innovations. Tomorrow we'll go on external strategies where the word will be mergers and. So tomorrow, right now I'm using the word, if I'm discussing this word, I discuss Tata Motors is acquiring. So acquisition I'm using right now. Everybody. Acquisition is using, I am using this word right now. So make sure acquisition. Tata Motor acquiring Mahindra Motor is nothing but answer दो मेरे आंसर में, horizontal integrated diversification. Horizontal. If I am starting the supplier, backward integration. I am starting the forward distribution, forward. What I am doing, I am acquiring that only. Horizontal integrated diversification. Horizontal integrated diversification. Acha, one more point. I'm not acquiring, sir. I'm having already factory of 50,000 units where I can manufacture how many units? 50,000 units. 50,000 units I can manufacture in this factory. I started a new factory where 5,000 units more can be manufactured. My question, now how much manufacturing is taking place? Total manufacturing 55,000. Is this expansion? Sorry, it is increasing. Okay, now tell me what will be this? Horizontal. तो horizontal में कितनी चीज आती है? दो. What are the two things? One is acquiring or one I myself starting. But what I am starting here in horizontal, what I am starting? What I am starting? The same product. My friends, तो हॉरिजॉन्टल में रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं डिस्कस करने का, क्या याद रखने का? सेम प्रोडक्ट. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. तो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज इंक्रीजिंग द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बाय 10,000 वॉल्यूम. इट इज विच डाइवर्सिफिकेशन? हॉरिजॉन्टल. आई होप क्लियर है मालिक. आई एम शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टेड क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग backward. Okay, I hope everybody clear. But whenever you write forward and backward, your answer, first answer should be vertical. And in vertical, you will be writing specific answer. पक्का सबको समझ में आया? नहीं? ठीक है, वापस आते हैं. ओके, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैं शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, अब मैं क्लॉथ मैन्युफैक्चर करना चाहता हूं. बैकवर्ड. ओके, पर आंसर लिखते वक्त वर्टिकल, एंड इन वर्टिकल इट इज बैकवर्ड. आई होप इधर क्लियर अभी. ठीक है, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टिंग ए शॉप, फॉरवर्ड. पक्का क्लियर? ओके, वर्टिकल एंड फॉरवर्ड. फ्रीज्ड, पक्का. शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्सपांडिंग द ऑपरेशन बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन वॉल्यूम बाय 10,000 मोर यूनिट्स. हॉरिजॉन्टल. समझ में आया? शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्वायरिंग अनदर शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. पक्का एवरीबॉडी? Okay, now I am saying shirt manufacturing company starting shoes manufacturing. Conglomerate कैसे आएगा? Related ना रहे. अच्छा, shirt and shoes are related or not related? PTM को तो छोड़ना ही नहीं आपने. PTM, अब मेरे को बताओ किस में फिट होएगा? ये तो पूरा एकदम ऐसा चक्रव्यूह रच लिया है. अभिमन्यु तोड़ सकता है. ओके, ये किस में डाल? हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल में कब जाएगा? जब पीछे जाएगा, नहीं तो आगे जाएगा. वर्टिकल में उधर रह के कुछ नहीं करेगा. ओके, अब मेरे को बताओ. ओके, एक एक क्लियर करते हैं. शर्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टिंग क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग बैकवर्ड. एवरीबॉडी क्लियर? शूज है क्या उसमें? पक्का ना? शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टिंग ए शॉप टू सेल द शर्ट्स. शूज है क्या? फॉरवर्ड में ये बेच रहे, उसको देख रहे हैं. ओके, हॉरिजॉन्टल में क्या समझाया मैंने? द सेम प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड
हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में कितने एग्जांपल दिए? दो. व्हाट आर द टू एग्जांपल व्हिच आई हैव डिस्कस्ड? वन इज एक्विजिशन, एक्वायरिंग कंप्यूटर बिजनेस, और इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी. प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम बढ़ाना. आई होप क्लियर है मालिक? तो फिर ये किस में जाएगा? हॉरिजॉन्टल. ओके, यानी पॉइंट टू बी नोटेड. अच्छा, इज दिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट विच आई डिस्कस विथ यू राइट नाउ? इज दिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट? ऑनलाइन पर लोग, सब लोग को समझ में आ रहा है? इज दिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट? नो. प्रोडक्ट डेवलपमेंट में वी नीड टू सेल टू ओनली करंट कस्टमर. इज दिस करंट कस्टमर? तो फिर ओके, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल कैसे आएगा? मेरे को समझ नहीं आ रहा. हॉरिजॉन्टल कैसे आएगा? हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा. तो इस केस में आंसर विल बी कॉन्सेंट्रिक. यानी पॉइंट टू बी नोटेड. ओके, व्हेन वी आर, लिसन केयरफुली. ओए भाई साहब, आत्माओं जाने मत दो. यानी अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या फिट करो? क्या वो वर्टिकल में किधर ऊपर या नीचे है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल लुक आउट वेदर वो वर्टिकल में ऊपर नीचे है क्या. अगर वो वर्टिकल में ऊपर नीचे बैठ गया, वर्टिकल में ऊपर नीचे बैठ गया, तो आपके लिए आंसर क्लियर है. तो फर्स्ट फिल्टर इज वर्टिकल. वर्टिकल में ऊपर नीचे देखो, क्या ऊपर नीचे बैठ रहा है? क्या ये रॉ मटेरियल यूज कर रहा है? क्या ये फिनिश गुड्स यूज कर रहा है? नहीं. आंसर क्लोज करो, यानी वर्टिकल कैंसल. फिर क्या देखो? एग्जैक्ट यही बन रहा है क्या? अगर वो एग्जैक्ट वही बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल. ओके, और वो दोनों नहीं हो रहे हैं लेकिन रिलेटेड है. दोनों नहीं हो रहे हैं और रिलेटेड है, तो आंसर विल बी कॉन्सेंट्रिक. यू विल नॉट बी राइटिंग ए कॉन्सेंट्रिक. तो व्हेनेवर वी आर यूजिंग द वर्ड कॉन्सेंट्रिक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन इज देयर? कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन इज देयर टू. व्हाट आर द टू? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. और उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दिया है, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन इज जनरली अंडरस्टूड. जनरली, नॉट प्रिसाइजली. वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन इज जनरली अंडरस्टूड इन टू डायरेक्शन. जनरली अंडरस्टूड इन टू डायरेक्शन. वन इज वर्टिकल, वन इज हॉरिजॉन्टल. जनरली बोला है. इसका मतलब देयर मे बी अ चांस, देयर कैन बी वन मोर. प्रिसाइज थोड़ा ना वर्ड किया है. देयर ओनली टू टाइप्स ऑफ वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, ऐसा मैंने बोला ही नहीं है. ओके, व्हाट वर्ड दे हैव यूज्ड? वर्टिकल कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स. कैसा? जनरली. आई होप समझा क्या मालिक? नहीं समझा? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? पक्का? कैन वी क्लोज ऑन दिस टॉपिक नाउ? पक्का? तो क्वेश्चन पूछू. फिर क्वेश्चन पूछने के बाद क्लोज करते जाइए आंसर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ओके, एक्वायर अनदर क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टेड शर्ट मैन्युफैक्चरिंग. स्टार्टेड शर्ट मैन्युफैक्चरिंग. फॉरवर्ड, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ओके, परचेज दैट सिल्क वॉर्म. मालूम है ना सिल्क वॉर्म? टू ग्रो द सिल्क इन देयर फार्म. बैकवर्ड. ओके, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टेड टायर मैन्युफैक्चरिंग. Car manufacturing company started shops. Car manufacturing company acquired another car manufacturing company. Car manufacturing company started bike manufacturing. Okay, the answer is concentric. I hope you are now getting the point. Concentric समझ में आया? So there is a time where there will be an answer of which diversification? Concentric. Don't ever think that concentric every time I need to write vertical or horizontal. There may be an answer which is only having concentric. If it is not fitting in backward and forward, if it is not going in the same process, the answer will be पक्का. समझा everybody? पक्का? ओके, चश्मा जो बनाता है वो कौन सी कंपनी है? लेंसकार्ट. वेरी ब्रांड पॉइंट. लेंसकार्ट, ओके, बाइज द ग्लासेस किसी और से लेते हैं और उसके बाद वो मैन्युफैक्चर करके आपको बेचते हैं. Okay, so first of all, they started manufacturing glasses on themselves. Backward. Now they started in online shops. Forward. This is forward. I hope everybody clear. पक्का? लेकिन ये forward होगा या market development होगा? If I am saying they started online, market development or forward? कैसे define करोगे? If my question says I am already having a shop and I am starting online, समझ में आया? तो खाली क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होने वाला. क्वेश्चन का लास्ट लाइन लॉजिकली कर देखना होगा. अब मैंने बोला आई स्टार्टेड ऑनलाइन ऑल्सो, मैंने वर्ड ये यूज किया है, आई स्टार्टेड ऑनलाइन ऑल्सो. तो क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी ऑफलाइन बेच रहा होगा. तो क्वेश्चन को अपने को लगा डाइवर्सिफिकेशन है, कॉन्सेंट्रिक है, ये है, रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन किसके ऊपर था? मार्केट डेवलपमेंट. आई होप ये समझ में आ रहा है क्या मालिक?
ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूं मेरा शॉप ही नहीं है, हम डीलर को देते थे, rather than selling to dealers now we started our own shops. Forward, this is what concept comes. Forward integration. Earlier there was a dealer who was selling online, now we started online selling. Forward, I hope ये समझ में आ रहा है. ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड कब करना है? जब आपके प्रोसेस की तरफ ध्यान दिया जा रहा है. आई शॉप्स, ये क्या बोलते हैं, गॉगल नहीं, गॉगल स्टार्ट किया. मेरा क्वेश्चन ये है, ये लोग खाली चश्मा बनाते थे, नाउ दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गॉगल्स. दे हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गॉगल्स. कॉन्सेंट्रिक पक्का या हॉरिजॉन्टल? कॉन्सेंट्रिक और हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक और हॉरिजॉन्टल. ओके, ये पहले क्या बनाते थे? लेंस कार्ड, खाली चश्मा. अभी क्या बनाने लगी? गॉगल. ओके, मेरा क्वेश्चन है, क्या ये रिलेटेड है? यस. लेकिन क्या ये सेम है? बात खत्म. तो आपको ये ध्यान में रखना होगा. तो दिस विल बी व्हाट? कॉन्सेंट्रिक. ये सारे एग्जांपल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, कहां से है? डेटाबेस वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3. ये सारे एग्जांपल्स जो अपन ने डिस्कस किए, दिस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर क्वेश्चन बैंक. एंड मतलब ये धीरे धीरे सॉल्व करते हैं. बस अभी इतना होगा, अपन ने डिस्कस कैसे किया? वी हैव डिस्कस इन 1 लाइन 2 लाइन्स, बट क्वेश्चन बैंक में हमें क्रैक करना पड़ेगा आफ्टर रीडिंग 8 to 10 लाइन्स. उसके बाद समझना पड़ेगा, बिकॉज 8 to 10 लाइन में और डेटा दिया होगा. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. कोई भी डाउट, एटलीस्ट इसमें कुछ डाउट है तो बताओ मेरे को, फिर मैं वो मॉड्यूल के वर्ड्स बताता आपको. पहले कोई कॉन्सेप्चुअल में डाउट है तो बताइए. इसमें ऑनलाइन में तो ये चल ही नहीं रहा, मां कसम. एनी डाउट मालिक? I hope this concept is clear to the extent. Okay, now 2-3 keywords to be remembered. वैसे ये कंटेंट लिखा हुआ रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए कीवर्ड में. सबसे पहले आई एम एक्सप्लेनिंग कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. लिसन केयरफुली एवरीबडी, वो ध्यान एकाग्रित. राइट नाउ आवर इन राइटिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से ज्यादा राइटिंग. सबसे पहला कॉन्सेंट्रिक आते ही कौन सा वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए? रिलेटेड हो गया, पर रिलेटेड कैसे? हाउ इट इज रिलेटेड? प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड, आई नो प्रोडक्ट इज रिलेटेड. पीटीएम, पीटीएम का फुल फॉर्म प्रोसेस टेक्नोलॉजी. एवरी क्लियर? तो कान खुले. व्हाट आई एम यूजिंग द वर्ड न्यू बिजनेस इज लिंक्ड विथ, न्यू बिजनेस इज एग्जिस्टिंग पीटीएम. न्यू बिजनेस इज लिंक्ड विथ एग्जिस्टिंग पीटीएम. पीटीएम समझ में आया? एग्जिस्टिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी मार्केट. दिस इज योर फर्स्ट सिनेरियो. सेकंड सिनेरियो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट न्यू प्रोडक्ट इज स्पिन ऑफ. न्यू प्रोडक्ट इज spin off from existing facilities. The new product is spin off from. Sir, what is the meaning of spin off? Spin off मतलब outcome. हमने existing facility को कुछ ऐसा change किया, उसकी वजह से मेरे को outcome मिला. That new product is an outcome. तो new product is a spin off from existing facility. Existing facility and product में से जो outcome आ गया, वही new product आ गया. That is your second point to be remembered. Third point, very important. Okay, आपने कभी word सुना है synergy benefits? What is the synergy benefits? सिनर्जी सुना ही नहीं? सिनर्जी साथ में. ओके, एग्जांपल मी, प्रशांत सर एंड विनोद सर, अगर हम साथ में हैं और हम साथ में अपन एक दूसरे को प्रोडक्ट को प्रमोट करें, तो डोंट यू थिंक ऐसा हो सकता है जो मेरे प्रोडक्ट लेने वाले होंगे वो विनोद सर के और प्रशांत सर के भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, और जो उनके प्रोडक्ट लेने वाले हैं क्या वो हमारे भी ले सकते हैं? दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सिनर्जी बेनिफिट्स. नाउ थिंक लॉजिकली, यू आर डीलिंग ओनली इन शर्ट. Now because now you start along with shirt you started manufacturing shoes. Okay, don't you think you will be getting synergy benefit? Because एक बंदा जो शर्ट खरीदने आएगा, क्या वो शूज खरीदने भी आ सकता है क्या? अगर आ सकता है तो क्या उसकी वजह से सेल्स इंक्रीज हो सकता है क्या? इसको हम कौन सा बेनिफिट बोलते हैं? सिनर्जी. कीवर्ड्स मुझे दिमाग में चाहिए आपके. सबसे पहला पीटीएम याद रखोगे. सेकंड पॉइंट, ओके, स्पिन ऑफ. क्या बोलोगे? स्पिन ऑफ. तीसरा सिनेरियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिनर्जी. कौन सी बेनिफिट? सिनर्जी. एंड फोर्थ सिनेरियो, ये जो मैंने ये बोला है, दिस इज नथिंग बट आवर लूप कॉन्सेप्ट. क्या बोलते हैं? लूप. लूप मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? लूप, गोल गोल सर्कल. तो मेरे को बताओ, मेरी जिंदगी तो इन लूप में ही जा रही थी ना.
ओके, तो लूप लाइक मैनर में जो जो आइटम्स आ रहे हैं उसको मैं बनाना चालू करता हूं। लूप लाइक मैनर में जो जो आइटम आ रहे हैं उसको मैं क्या करना चालू करता हूं, बनाना चालू करता हूं। वे किसका मसाला मैंने डिस्कस किया, ये कॉन्सेंट्रिक का। ये किसका मसाला था, कॉन्सेंट्रिक। क्या हमें कॉन्सेंट्रिक लिखने को आ सकता है, नहीं आ सकता, जहर खाना चाहिए मैंने अभी। आ सकता है कि नहीं आ सकता है, कब आ सकता है, एग्जाम्पल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लिखोगे तब कॉन्सेंट्रिक लिखोगे क्या, नहीं। अच्छा मेरे को बताओ, ओके क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टेड शर्ट मैन्युफैक्चरिंग, पहले आंसर बोलो फॉरवर्ड, लेकिन मैंने क्या बोला, स्टार्ट कैसे करोगे, दिस इज वर्टिकल। कॉन्सेंट्रिक समझाने की जरूरत नहीं है, यू स्टार्ट विथ वर्टिकल, और वर्टिकल में कौन सा, फॉरवर्ड। ये सबके मसाले अलग अलग है भाई, तो कॉन्सेंट्रिक कब यूज करना है, रिलेटेड प्रोडक्ट होगा पर मतलब दो इसमें फिट नहीं हो रहा है, कौन सा दो इसमें फिट नहीं हो रहा है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। एग्जांपल क्या था उसका, ओके बाइक और कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टिंग बाइक, ओके शर्ट मैन्युफैक्चर स्टार्टिंग शूज। आई होप जेपिंग मालिक, आवाज नहीं आ रही है, पक्का क्लियर है एवरीबॉडी, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। तो पहले ये पॉइंट याद रखिए, ये रटना है, रटना मतलब कीवर्ड्स नीड टू बी रिमेंबर्ड, और ये कीवर्ड्स देन क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से अपने को आंसर लिखना होगा। एग्जांपल कमिंग टू द पॉइंट, शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड शूज मैन्युफैक्चरिंग, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड शूज मैन्युफैक्चरिंग, एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट कॉन्सेंट्रिक। नाउ while writing this answer 100% your first time, again I'm telling you, while writing this weekend we'll close that particular question bank, but answer should start with the conclusion. Okay, any other subject may have a different approach, SM is having different approach. Start में तुमको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा आंसर क्या है। तो फर्स्ट लाइन स्टार्ट विथ, ओके क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टेड विथ शर्ट मैन्युफैक्चरिंग, फर्स्ट आंसर फर्स्ट लाइन। ओके स्टार्ट क्या करोगे, दिस स्ट्रैटेजी और दिस एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी इज वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन डॉट, इन वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन मोर प्रिसाइजली दिस इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। आई होप समझा मालिक, पहली लाइन में कंक्लूजन, पहली लाइन में सामने वाले को समझना चाहिए तुम सही है। और सर ये मेरा अप्रोच नहीं है, ये किसका अप्रोच है, आरटीपी एमटीपी मॉड्यूल देख लीजिए, स्टिक टू इट। ऑडिट एंड लॉ में हैव ए डिफरेंट अप्रोच, ऑडिट एंड लॉ में आपको पहले फैक्ट और प्रोविजंस लिखने पड़ते हैं, कंक्लूजन इज ऑलवेज है लास्ट लाइन, लास्ट में आपको बताना पड़ता है एक लाइन में दो लाइन में कंक्लूजन क्या है। एसएम में रिवर्स है मेरे मालिक, सर एसएम में क्या रिवर्स है, एसएम में द सीक्वेंस इज कंक्लूजन फर्स्ट देन प्रोविजन एंड देन क्लोज विद द फैक्ट, प्रोविजन एंड फैक्ट नीड टू बी इंटीग्रेटेड। तो आप मेरे को बताओ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का आंसर आ रहा है, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड विद बूट मैन्युफैक्चरिंग, तो स्टार्ट कैसे करोगे, दिस टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इज कॉन्सेंट्रिक। अब मेरे को कॉन्सेंट्रिक का मसाला रिकॉल करके बताओ, चार पॉइंट्स मैंने जो बताया। फर्स्ट पॉइंट, द प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड, ओके एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट विल बी रिलेटेड इन एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट थ्रू पीटीएम। पहला पॉइंट प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड। दूसरा पॉइंट, अरे समझ में आ रहा करे, आई मीन टू आंसर फॉर्मेट, एवरीबडी बी अवेक। दूसरा पॉइंट, ओके न्यू प्रोडक्ट इज रिलेटेड विथ एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ पीटीएम, स्पिन ऑफ वर्ड याद रखना। चौथा पॉइंट, दोनों को सिनर्जी, मेरी वजह से शूज बिकेगा, शूज की वजह से शर्ट बिक सकता है, और कौन सा वर्ड, सिनर्जी। एंड सेकेंड लूप लाइक मैनर। बस आपको आंसर लिखते वक्त ये ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट ऐसा आएगा, ओके इन दिस केस, ओके फर्स्ट वाला क्या पॉइंट था, द एग्जिस्टिंग न्यू प्रोडक्ट इज लिंक्ड विथ existing product through PTM. Dot. In this case, the shirts process, technology or market are resembling with shoes manufacturing. Dot. I hope समझ में आ रहा है. The existing product is spin-off from the facility. Which facility? Sorry, the new product, existing product नहीं. New product is spin-off from existing facility. The boot manufacturing can be done from the existing facility of shirt manufacturing. I hope you are getting the point. ये मैंने आपको day 1 पे यही समझाया था. The answer will not be what you are writing here. Answer need to framed along with the earlier one. Last 3 lecture, देखो first 3-4 lecture was only to set up a concept. First 3-4 lecture तो अपने सब words को familiar करने को गए. Technically last 3-4 lecture से अपन ने chapter चालू किया है. अगर आप बोलोगे सर अर्लियर डिस्कशन, लास्ट 2 दिन के डिस्कशन, 3 लेक्चर के डिस्कशन क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड और क्या था, रीजन, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर थे ना, उसमें मुझे कुछ मर्जिंग का कोई पॉइंट नहीं था. यहां पर से अब आपको मर्जिंग चालू होगा.
तो यहां पर से whenever we are writing any answer, you will be highlighting the keyword, but you need to understand these keywords need to be integrated with fact. Fact of the question. Fact of the question. So I'll be using three concepts. One is conclusion, one is provision, one is fact. Three words. What are the three words? Pehla point, conclusion. Second, provision and fact. Conclusion you will write in starting paragraph. After that, provision and fact you will try to integrate. हाँ, वर्स्ट केस अगर आपको कुछ समझ ही नहीं रहा इंटीग्रेट के लिए, वर्स्ट केस, तो बेस्ट ऑप्शन क्या करने का? प्रोविजन लिख दे, मतलब जो आपने थियरी पढ़ी है वो लिख दो और फिर फैक्ट लिखो. डेफिनेटली मार्क्स मिल, क्योंकि दिस इज नॉट अ सिनेरियो. आपका मॉड्यूल एंड आरटीपी इज सेइंग अदर वे राउंड, तो अपने को वैसे ही रखना पड़ेगा. तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है मालिक, पक्का? तो कॉन्सेंट्रिक ध्यान रहेगा. कैन वी क्लोज ऑन कॉन्सेंट्रिक? ठीक है. कॉन्सेंट्रिक के बाद दूसरा कौन सा है? नहीं, कॉन्ग्लोमेरेट के पहले कॉन्सेंट्रिक के 4 पॉइंट मेरा बापू लिखेगा. अच्छा, 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे ना. पहले क्या लिखेंगे? वर्टिकल. वर्टिकल के 3 लाइन, फिर उसके बाद वर्टिकल के 2 पॉइंट, उनका एक पैराग्राफ, एंड आफ्टर दैट लास्ट ओके हॉरिजॉन्टल. तो अब मेरा क्वेश्चन है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कैसे बताओगे? वर्टिकल में कैसे लिखोगे? व्हाट इज द कीवर्ड टू बी रिमेंबर्ड इन वर्टिकल? वर्टिकल में क्या होता है? पहला लाइन तो कभी भी कॉमन रखो. कौन सा पहला लाइन है? द न्यू प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. अबे इतना तो दिमाग चलाना भाई. न्यू प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू थ्रू पीटीएम. तो पहली स्टोरी रट लो सब जगह. सब जगह मतलब कॉन्ग्लोमरेट में नहीं, बस कॉन्ग्लोमरेट में इसका उल्टा करना है. कॉन्ग्लोमरेट में क्या लिखेंगे पहली लाइन? द न्यू प्रोडक्ट इज नॉट रिलेटेड विथ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थ्रू पीटीएम. तो पीटीएम का कोई रिलेशन ही नहीं है न्यू प्रोडक्ट के साथ. आई होप ये समझा क्या मालिक? ठीक है. कमिंग बैक टू पॉइंट. ओके, वर्टिकल में और क्या होता है? वर्टिकल में ओके हाँ, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड जैसा वर्ड है. तो टेक्निकली द न्यू प्रोडक्ट वर्ड यूज करना है. न्यू प्रोडक्ट विल बी फिटिंग इन द प्रोसेस चेन. द न्यू प्रोडक्ट विल बी फिटिंग इन, आइदर इट कैन मूव बैकवर्ड और इट कैन मूव फॉरवर्ड. ये वर्टिकल का हुआ. फिर बाद में बताइए बैकवर्ड और फिर बाद में बताइए फॉरवर्ड, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन कौन सा है. डोंट राइट, कभी भी अगर बैकवर्ड आया तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट फॉरवर्ड. खाली आप समझाओगे कौन सा? वर्टिकल प्लस बैकवर्ड. और फॉरवर्ड आया तो वर्टिकल प्लस फॉरवर्ड. आई होप जेपिंग मालिक, पक्का? ओके. और फॉरवर्ड वर्टिकल में, बैकवर्ड में डेफिनेट एडवांटेज क्या बताए थे? 2 एडवांटेज तुमने बता दिए थे. कॉस्ट है एंड कंट्रोल. कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन, कंट्रोल ओवर. यही 2 पॉइंट 2 बार लिखना है. यही 2 पॉइंट कितनी बार लिखना है? 2 बार. एक में लिखेंगे भाई कॉस्ट पे, कॉस्ट पर यूनिट कम करना है, और कॉस्ट पर यूनिट कम करना है. ये लॉजिक समझा मालिक? एंड सेकंड पॉइंट ये लिखेंगे, सप्लायर का प्रोडक्ट हमें कॉस्टली पड़ रहा है. सप्लायर का प्रोडक्ट, तो दोनों लॉजिक है हुई ना. तो अगर मुझे कॉस्ट लीडर बनना है तो भी मेरे को बैकवर्ड में जाना पड़ेगा, या सप्लायर मुझे कॉस्टली पड़ रहा है तो भी बैकवर्ड. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. ओके. और एक क्या रीजन दिया था? कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन. तो फर्स्ट पॉइंट, okay, the availability of raw materials may not be available on time, therefore you may go with backward. And having a greater control of supplies, having a greater control of, okay, क्या होता है मालूम है क्या? हमारा जो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल है वो सिर्फ हमें मिलता है या हमारे कॉम्पिटिटर को मिलता है? तो अब ये दोनों को मिलते रहा तो दिक्कत होती रहे ना. तो बेस्ट ऑप्शन क्या करने का? खुद का चालू कैसे करने का? क्या तुम्हारे पास कोर कॉम्पिटेंसी है? बैकवर्ड ही करना है, बैकवर्ड ही, आई एम इनटू बैकवर्ड ही. पर लेकिन बेस्ट आंसर क्या होगा मालूम है? क्या तुम्हारे पास कोर कॉम्पिटेंसी है पीछे? अच्छा, मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, क्या मेरे पास टायर मैन्युफैक्चरिंग की कोर कॉम्पिटेंसी है? नहीं है. तो क्या करने का बेस्ट ऑप्शन? मुझे चालू करना, पर मुझे चालू करना है, आई नीड टू स्टार्ट, बट एक्सपर्टाइज तो है नहीं. तो आप एक यूनिट लोगे, खरीदोगे, इन्वेस्ट करोगे, ओके, फिर एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग दोगे, फिर प्रोडक्ट खराब होगा पहली बार, मालूम है ना, पहले 2-3 बार लर्निंग का हो. तो बेटर ऑप्शन सप्लायर को ही एक्वायर कर लो और बाकी सब जगह सप्लायर रोक दो. समझ में आया? हॉरिजॉन्टल, मां कसम किसी ने तो हॉरिजॉन्टल बोला, इतना ब्लंडर होगा ना. हॉरिजॉन्टल वाला कौन होगा? कार मैन्युफैक्चरिंग वाला खरीद रहा है. कौन? कार. मैं टायर वाले को खरीद रहा हूं, ये भी कौन सा हुआ? बैकवर्ड. वर्टिकल में बैकवर्ड हुआ ना? नहीं समझा? ये भी बैकवर्ड ही है. तो क्या ऐसा है, जरूरी है कि बैकवर्ड में मैं खुद चालू करूंगा या एक्वायर भी कर सकता हूं? मैंने वर्ड क्लियर यूज किया आज के लिए, एक्विजिशन. मर्जर नहीं यूज किया. मर्जर कल करेंगे. तो मर्जर और एक्विजिशन का डिफरेंस भी मैं कल ही बताता, पर अभी के लिए एक्वायर करना मतलब खुद खरीद लेने का. पैसा है ना, बस पैसा है, पूरा खरीद लेंगे, मां कसम. टेक्निकली खत्म स्टोरी. अपना कंट्रोल ये आएगा. अच्छा, फॉरवर्ड क्यों करने का?
अब कंट्रोल करके कंट्रोल, कुछ वर्ड नहीं आ रहा तो कंट्रोल पे पकड़ के बैठे हो। फॉरवर्ड क्यों करने का? फॉरवर्ड फॉरवर्ड क्यों करने का? अच्छा मेरे को पहले बताओ फॉरवर्ड का डेफिनेशन बताओ। फॉरवर्ड में कितने डेफिनेशन बताए थे? दो। कौन से दो थे? ओके एक है स्टार्टिंग द बिजनेस वेयर माय फिनिश गुड्स इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल्स, एंड दूसरा पॉइंट क्या था? ओके सेलिंग द फिनिश गुड्स, सेलिंग द फिनिश गुड्स। ओके तो मेरे को बताओ, ओके जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है क्या वो हमारा खाली अकेले का प्रोडक्ट बेचेंगे या कॉम्पिटिटर का भी? अब यहां पर क्या हमारा प्रोडक्ट का मार्केट शेयर कम हो सकता है? तो स्टार्टिंग विथ फॉरवर्ड, गोइंग एड विथ फॉरवर्ड एंड एंटरिंग इनटू सेलिंग, डोंट यू थिंक इट विल बी वेरी इजी टू गेन ए कंट्रोल ओवर मार्केट अगेन? बिकॉज आई विल बी सेलिंग इट आउट। बट डेफिनेटली इसमें कॉम्पिटिटर का शेयर नहीं होगा ऐसा नहीं है, बट टू द एक्सटेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड का एक ही एडवांटेज याद रखिए, फॉरवर्ड का एक ही एडवांटेज, गेनिंग एंड कंट्रोल ओवर, कंट्रोल वापस आया पर ओवर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, गेनिंग ए कंट्रोल ओवर। अच्छा चलो आज मेरे को अगर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चालू करना है, आपको क्या लगता है मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्ट है? मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, मालूम है डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफिकल्ट। बिकॉज मैं जिनसे बात करूंगा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या बोलेंगे, हमारे पास ऑलरेडी कौन सा है, पार्ले, सनफिस्ट, और मैं उसको बोलूंगा मैं तेरे को ऑफर ज्यादा दे रहा हूं, डिस्काउंट ज्यादा दूंगा, ओके मैं क्रेडिट ज्यादा लंबा दूंगा। वो बोलेगा सर मैं आपका बिस्किट तो खरीद लूंगा, क्रेडिट भी मिल जाएगा, लेकिन नहीं बिका तो मेरे पास जो थे वो छोड़ के चले जाएंगे, पार्ले मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ले लेगा। अरे है पार्ले ऐसा करता है, नेस्ले डज लाइक दिस, पार्ले डज लाइक दिस, मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो किसी और का नहीं देगा। एंड हु कैन डू दिस? ओनली द मोनोपोलिस्टिक एनवायरमेंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम हुआ तो बेस्ट ऑप्शन क्या करने का? फॉरवर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम आया तो क्या करने का? अब मेरे को बता फॉरवर्ड किया तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल मेरे ऊपर आ जाएगा? दैट्स इट, फेयर इनफ। आई होप ये पॉइंट क्लियर है मालिक, एवरीबॉडी? ओके एंड लास्ट पॉइंट इज कौन सा वाला आंसर? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या लिखोगे? ओके हॉरिजॉन्टल में क्या लिखना मालिक? ओके दो चीज मैंने बोली थी, एक्विजिशन और ओके और क्या करने का? इंटीग्रेटिंग न्यू कैपेसिटी। इंटीग्रेटिंग, दोनों एग्जांपल याद है कि नहीं? वन वाज फैक्ट्री, मैंने किसी टाटा मोटर एक्वायर महिंद्रा, और टाटा मोटर सेटअप न्यू फैक्ट्री, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड विच वन? हॉरिजॉन्टल। आई होप जेपिंग मालिक, अरे हाय या ओके एवरीबॉडी क्लियर? ओके और एक वर्ड इसके अंदर रहेगा, ओके दे हैव यूज्ड दैट वर्ड, बट उसका इंटरप्रिटेशन आपने और कुछ कंफ्यूज नहीं करना है। दैट वर्ड नीड टू बी यूज्ड ओनली व्हाइल राइटिंग ए थियरी। ओके इवन एक्वायरिंग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, इवन एक्वायरिंग और बाय प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट मतलब इसमें से कुछ निकल रहा होगा उसी को बेचना। ओके दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में दूसरा मसाला क्या रहेगा? सेकंड कंटेंट क्या रहेगा? ओके कॉम्प्लीमेंट्री और बाय प्रोडक्ट। बट कॉम्प्लीमेंट्री और बाय प्रोडक्ट को लिंक मत करना, कंफ्यूज मत करना आपके आंसर में, क्योंकि मॉड्यूल एंड आरटीपी के आंसर अलग है। एग्जांपल, टेक्निकली स्पीकिंग शर्ट के साथ बूट इज कॉम्प्लीमेंट्री। ओके सो टेक्निकली वी कैन गो राइट द आंसर ऑफ हॉरिजॉन्टल, बट दैट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, वही आंसर याद रखो, बिकॉज दैट इज व्हाट मॉड्यूल इज एक्सपेक्टिंग। व्हेन आई एम सेइंग मॉड्यूल मतलब मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपीस। एंड आपकी फीलिंग क्या है, मेरी फीलिंग क्या है, इसको बाजू में रखो। इंस्टीट्यूट की फीलिंग क्या है वो ध्यान में रखो, बिकॉज इंस्टीट्यूट के सर्टेन एजम्पशंस है, दे आर कंसिडरिंग सर्टेन एजम्पशंस। तो व्हेनेवर द क्वेश्चन कम्स, मेरे को बता दो, आंसर क्लोज कर दो। व्हेनेवर द क्वेश्चन कम्स, ओके इसके शर्ट मैन्युफैक्चरिंग विद बूट, व्हाट इज योर आंसर? कॉन्सेंट्रिक, नो अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट। आई होप क्लियर मालिक? ठीक है, तो देखते हैं लिखते वक्त अपने को कितना कंटेंट कैसे ध्यान रहता है, कौन सा कंटेंट ध्यान रहता है, एंड अकॉर्डिंगली विल क्लोज इट आउट। बट मेक श्योर ओके व्हाटएवर टुडेज लेक्चर, व्हाटएवर आई एम राइट नाउ अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग, दिस ऑल आंसर यू शुड इंटीग्रेट विथ व्हाट? ओके यू शुड इंटीग्रेट विथ फैक्ट। मतलब आपको ये समझना होगा, ए भाई साहब प्लीज अगर ये नहीं सुना ना, मैं बोल रहा हूं अपन एसएम का पूरा ब्लंडर करेंगे। मैं जो आंसर अभी आपको समझा रहा हूं, कीवर्ड समझा रहा हूं, आंसर अपने को ऐसे ही याद रखना है, लेकिन इसके साथ एज इट इज लिखना नहीं है। इसके साथ क्या ऐड करना है? फैक्ट को ऐड करना है। अगर आप फैक्ट ऐड करने में नाकाम है, आप रह जाते हो। डेफिनेटली 4 में से 2, 3 तो 2, 2.5 ये मिलने की संवाद है, बट 4 में से 4 मिलना इट विल बी बिग चैलेंज। तो अगर आपको मार्क्स को एकदम तोड़ स्कोर करना है तो भाई आपको ये एडेप्ट करना पड़ेगा। अगेन अगर आपका अभी भी माइंडसेट ये है कि हम एफएम का कर लेंगे या एसएम का, मैं वापस बोल रहा हूँ ये माइंडसेट से बाहर आओ, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है। ओके वन रिस्क विल मेक योर अटेम्प्ट ओके 3-4 months ahead, first thing. Secondly, one risk will make which attempt? CA final attempt.
4 महीना आगे होगा। 4 महीना मतलब वो टेक्निकली तुम्हारा इंटर का 4 महीना आगे होगा, लेकिन फाइनल का आइटम तो 6 महीना जाएगा आगे, क्योंकि फाइनल तो कितनी बार है साल में? 2 बार है। फर्स्ट थिंग, कोई भी रिस्क लेने के पहले ना आपने पहले अपने अप्रोच करने का। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइफ में मोटिवेशन बहुत अच्छा रहता है, सेकेंड अटेम्प्ट में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आती है। ओके, इमेजिन करो, ओके, सेकंड टाइम रीडिंग द सेम आंसर, यू आर रीडिंग दिस सेम आंसर एंड यू आर सेइंग अरे यार सर ने तो ये लास्ट टाइम समझा था, एग्जाम में ये आया था, अरे यार फिर भी नहीं हुआ। ओके, एंड ऐसा तो नहीं होगा आपने पूरा खराब लिखा होगा, कुछ तो सही लिखा होगा, ऐसा भी अरे यार ये सही लिखा, थोड़ा और सही लिख दिया होता तो बेटर होता था। और मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ओके, इनिशियली इन इंटरमीडिएट इट टुक 5 अटेम्प्ट्स, 4 अटेम्प्ट्स से मतलब मैं फ्लंक्ड हुआ, पर फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट आई वाज नेवर सीरियस, और मेरे को करना भी नहीं था, तो देयर वाज एजेंडा। तो अगर टेक्निकली इफ यू डोंट वांट टू डू द थिंग्स आर डिफरेंट देन, बट इफ यू आर सीरियस ऑन द कैरियर पॉइंट, ओके, यू आर सीरियस, नो बॉस आई नीड टू क्लियर इट आउट, मुझे सीए ही बनना है, सीए बन गए, नहीं सर देखते हैं एग्जामिनेशन देंगे, पास होते गए तो बन जाएंगे, नहीं हुए तो फिर देखेंगे, दूसरा कुछ देखेंगे। अगर ये कर रहे हो, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ योर लाइफ, बिकॉज यू आर वेस्टिंग द लाइफ प्रेशियस मोमेंट, बिकॉज आप ना एंजॉय कर रहे हो ना पढ़ाई कर रहे हो, मतलब दोनों पॉइंट पे। और लाइफ का एक ही पॉइंट है ना यार। अभी इंस्टाग्राम मोटिवेशन आपको मिलते जाएगा कि भाई यार यही यू मालूम है ना, इंस्टाग्राम मोटिवेशन रहता है सीए के रिलेटेड, अरे यार लाइफ के इतने साल कॉम्प्रोमाइज किए, माँ कसम बाद में प्रेस्टीज चार्टेड अकाउंटेंट, घंटा कुछ नहीं होता है भाई, पूरी लाइफ ही ऐसी निकलने वाली है। आज तेरे प्रॉब्लम्स क्या है? पढ़ाई करनी है, ये है, हार्डवर्क है, ओके, बैठने को नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन के लिए बेस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ओके, इसको ना एकदम लिमिटेड करो, बस इसको लिमिटेड करो। अच्छा व्हाट्सएप देखना है, देखो कौन मना कर रहा है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जाओ ना तो वीडियोस देखो शॉर्ट की जगह, जितना तुम शॉर्ट देखोगे ना उतना तुम्हारा कैपेबिलिटी टू रिटेन द कंटेंट विल रिड्यूस, आई बेट, क्योंकि तुम ही अपने आप को बॉडी को अडेप्ट कर रहे हो कि 20-25 सेकंड में बोर होना। तो वो एक टाइम के लिए, जो मई वाले हैं, जो सितंबर वाले हैं, भाई कर लो, उसके बाद देखो ना बैठ के, अरे एक बार सीए बन जाओ, उसके बाद पूरा दिन शॉर्ट ही देखो, क्या फर्क है। एंड एट द एंड ऑफ द डे देयर आर, देखो, वन अल्टीमेट पॉइंट इज लक्ष्मी माता इज रिक्वायर्ड, एवरीबडी इज फोकसिंग, नोबडी, ऐसा कोई है इधर बैठा हुआ, सर वंस आई बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आई विल स्टार्ट ए सेक्शन 8 कंपनी, आई विल नॉट टेक मनी एनीथिंग एट माय पॉकेट, आई विल स्टार्ट ए सेक्शन 8 कंपनी, आई विल डू गुड फॉर, समाज के लिए अच्छा करना है, पर पहले अपना अच्छा होना चाहिए ना। यही तो लॉजिक सबका यही लॉजिक होगा। बहुत नहीं बोल रहा, एक हाथ कोई होगा पॉलिसी जो बोल रहा होगा नहीं नहीं सर मैं तो पूरा समाज सेवा करूंगा, लेकिन बी प्रैक्टिकल। समाज सेवा कब कर पाओगे? जब अपने पास कुछ कॉन्फिडेंस रहेगा। इधर साला अपने जेब में पैसा नहीं है, अपन दूसरों की मदद करेंगे, ठीक है, मदद करने के लिए भी वो बोलेगा भाई तेरे पास पैसे आएंगे तो मदद करने आ। तो सबसे पहले तेरे को क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे? लक्ष्मी माता। एंड लक्ष्मी माता के 2 अप्रोच है। पहला है लक्ष्मी माता इज ऑलरेडी विथ यू। एग्जाम्पल, ओके, तुम्हारे बापू बहुत तोड़, बापू मम्मी बहुत तोड़ करोड़पति अरबपति खरबपति है, अगली 7 जनरेशन बैठ के खा सकती है। तो मेरे हिसाब से तो तू सीए कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है भाई। यार पापा मम्मी का सपना पूरा कर, कमाया उन्होंने, तू उड़ाएगा। अच्छा मेरे को बता, पापा मम्मी का सपना क्या है? वो कमा क्यों रहे, वो मेहनत क्यों कर रहे हैं? कि अपने बच्चे एकदम मजे करे? तो इमेजिन कर, क्या ये मजे है? तो मजे कर, चिल मार, उड़ा पैसे, 7 जनरेशन है, ओके। लेकिन अगर अपनी फैमिली मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास मतलब क्या सर? ओके, पैसे अगर अपन उड़ाने बैठे तो 2 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं, 2 से 3 साल के अंदर। यही एक अप्रोच है मिडिल क्लास के पास। इन्वेस्टमेंट होगा, शेयर मार्केट होगा, तुम्हारे पास म्यूचुअल फंड होंगे, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग, जनरेशन नहीं चलेगी। जनरेशन चला तो करोड़पति है। जनरेशन चलनी चाहिए, समझ में आ रहा है? जनरेशन चलने के लिए उतना पैसा बनाओ भाई, आगे के साथ बैठने लगाओ ना, फिर अगली उस 7 के बाद 8वीं जनरेशन काम करेगी ना वापस। तो एज्यूम करो अपने 8वीं जनरेशन है, तो क्योंकि अपने वैली वाली जनरेशन ने जितना कमाया रहेगा उड़ा दिया। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो 7 जन है। तो अभी दूसरा एग्जांपल, अगर अपने पास लक्ष्मी माता नहीं है, यानी अपने को मालूम है, तो दूसरा अप्रोच इज वेरी क्लियर, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तुम अगर इन्फ्लुएंसर देखते हो, यूट्यूब देखते हो, हरे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, 1-2 ऐसे वो वीडियो बना सकते हैं, निब्बा निब्बी वाले, ओके, ऐसा एक चमार, ओह फिर वो मारेगी, फिर तू मारेगा, ओह फिर तू मारेगा, और एक दिन मैं वायरल हो जाऊंगा एंड ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये ख्याली पुलाव है, और इसके बाद भी ना लाइफ इज नॉट ईजी, बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स है। बेस्ट ऑप्शन बोल रहा हूँ, एजुकेशन है ना, तेरे मरने तक साथ में जाएगा। बेस्ट एग्जांपल, आई होप यू आर अवेयर, वेंकटेश अय्यर इन क्रिकेट, आईपीएल सुना है? ओके, ऑलराउंडर में सबसे हाईएस्ट बिड में गया, अभी वो हाईएस्ट बिड में गया वेंकटेश अय्यर। अभी ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर में बोल रहा हूँ। वैसे ऋषभ पंत इज ऑन हाईएस्ट बिड, आई होप एवरीबडी इज अवेयर अबाउट आईपीएल। ओके, 20 करोड़ भाई कमा लिया है। ओके, व्हाट ही इज डूइंग मालूम है क्या? अभी क्या कर रहा है? ओके, ही इज डूइंग एमबीए।
व्हाट इज द ग्राउंड फॉर डूइंग एमबीए? वो बोला भाई ये क्रिकेट मेरे 60 ईयर्स तक नहीं जाएगा, पढ़ाई मेरे 60 ईयर्स तक जाएगी। एक पॉइंट आएगा, एक लाइफ साइकिल आएगा, ओके एवरी आप जो करना चाहते हो कर लो। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपके कहां तक जाएगी? मरने तक। लास्ट तक तो बोला जाएगा ना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, उसने तूने उसका कितना उपयोग किया, दैट इज अ सेकंड थॉट। तो अल्टीमेटली अगर अपने पास टारगेट लक्ष्मी माता का नहीं है, मतलब वो लक्ष्मी माता नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है सरस्वती माता। ओके, वंस अचीव सरस्वती माता देन क्रिएट इंटरफेस विथ लक्ष्मी माता, अपने आप लक्ष्मी माता आएगी। बट फिर उसके बाद फिर तो तुम्हारे हाथ में है, फिर लक्ष्मी माता को तुमको कैसे क्या कैपिटलाइज करना है। बट टेक्निकली माय इंटेंशन इज वेरी क्लियर, इफ यू आर वेरी सीरियस विथ योर कंटेंट, फोकस ऑन इट, एल्स इट विल बी वेरी। और आपको ऐसा लगेगा कोई दोस्त तुम्हारा मस्ती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है ना, करो ना। और मैं कभी मना नहीं करता हूँ यार, हॉलीडेज लेने में, ये करने में बिंदास लो ना, कौन मना कर रहा है यार। अभी तुम्हारे घर में कोई शादी होगी, ओके, कोई बोलेगा नहीं नहीं भाई आई विल कॉम्प्रोमाइज माई लाइफ, आई विल डू द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन, आई विल नॉट अटेंड शादी वादी, वो अंदर ये तैयार कर रहा है, तो क्या मोटिवेशन लेक्चर, ओके, आई विल कॉम्प्रोमाइज ऑल मैरिजेस इन माई फैमिली, everybody were enjoying there, I was only studying 12-13 hours, nothing, you are not studying, you are watching reel of that marriage only, okay। जाओ ना शादी में, कौन मना कर रहा है? अरे कितना बड़ा बेवकूफी है अगर ये भी नहीं कर, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अरे जिंदगी है, मरने एक दिन मर जाएगा, क्या करने का, मरने के टाइम पे क्या बोलेगी पब्लिक, अरे कुछ नहीं किया इसने जिंदगी में, उससे अच्छा जा शादी में। लेकिन शादी में कैसा, 7 दिन के लिए नहीं, एक दिन जा रहा है ना, जाना संगीत संध्या में जा, फोटो एल्बम में आ, उनके एल्बम में आ। इमेजिन कर एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब तू सीए बन भी जाएगा, वो लोग एल्बम लेके डिस्कस कर रहे हैं, एंड दे आर डिस्कसिंग, भाई यार ये नहीं आया था शादी में, तो बोलेगा हाँ आई वाज डूइंग सीए। तेरे को लग रहा है ये प्राइड है? वो सामने वाले बेटे को बोल रहा है सबसे बड़ा सीए, तो क्या मतलब टेक्निकल, अच्छा तेरे, तू बोलेगा नहीं नहीं मैं सीए कर रहा था इसलिए मैं तेरी शादी में नहीं आया, तू वापस शादी कर, क्या वापस वो शादी करेगा एल्बम के लिए? नहीं है ना, ठीक है ना, मैनेज इट आउट ना। फिर तू बोलेगा सर फिर पढ़ाई का क्या, फिर हार्डवर्क करो ना, तुमको एंजॉयमेंट भी चाहिए ना, करो ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम फिर डबल हार्डवर्क करो, अगले दिन, अगले हफ्ते करो ना, अगले हफ्ते और थोड़ी अपनी पर्सनल चीजें कॉम्प्रोमाइज करो, ओके, देन योर बैलेंस विद लाइफ इज ओवर। अदरवाइज लाइफ का क्या है, एक दिन तू फ्रस्ट्रेट हो जाएगा अपनी लाइफ से, तू बोलेगा ये जिंदगी में क्या रखा है, मैं खाली पढ़े ही जा रहा हूँ जिंदगी में, और एक्चुअली पढ़ भी नहीं रहा होगा तू। सुबह 7:30 बजे आ रहा है, सीट गर्म कर रहा है, रात के 6:30 बजे तक सीट गर्म करके चला जा रहा है, बस सीट चेंज करते जा रहा है ताकि वो एक ही जगह, मतलब तो बेस्ट ऑप्शन आई एम टेलिंग यू, ओके, मेक श्योर यू बैलेंस ऑफ योर लाइफ एंड स्टडीज। सेकेंड पॉइंट, यू एंश्योर दैट योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज इंक्रीज्ड, एंड थर्ड पॉइंट, make sure you understand which subject which require which type of answer. It is not how old intermediate syllabus examination was going on. मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, और मतलब 1-2-3 पेपर चल रहे हैं मेरे और डिस्कशन के, मैं आपको 1-2 दिन में दिखाऊंगा, मतलब आंसर आप देखोगे सेम लिखा है, सेम बुक का बताता मैं आपको, सेम लिखा हुआ है, अपने पास पंटर लोग है सेम, ओके, 4 में से 2 मार्क। केस स्टडी इंटीग्रेट नहीं किया, केस स्टडी इंटीग्रेट, लास्ट लाइन डाल दी, एबीसी लिमिटेड शुड यूज द फॉलोइंग अबव पॉइंट्स, खत्म। मतलब समझ में आ रहा है, यानी व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ आईसीए नाउ। फिर आप बोलोगे सर मेरे को तो वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं, इंस्टीट्यूट बोल रही है, तुम्हें बता रहे ना, मॉड्यूल के आंसर देखो तुम, आरटीपीस देखो, ओके, एमटीपी देखो, दे आर गिविंग डेटाबेस ना, तो व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन, चेक इट आउट एंड अकॉर्डिंगली राइट द आंसर्स। तो टेक्निकली वॉट एवर हाईलाइटिंग यू आर डूइंग, अच्छा कल तक मैंने क्यों इतना एम्फसाइज नहीं किया था सर, till yesterday I never emphasized like this what I'm emphasizing on today's question answer, that मैं head point मसाला लिखा रहा हूँ, but I've never emphasized to integrate case study, okay, और fact of the case, reason simple थे, yesterday के जो 4-5 आंसर आपने किए वो डायरेक्ट आंसर्स थे भाई, डायरेक्ट आंसर्स थे। अच्छा मार्केट पेनिट्रेशन में क्यों नहीं किया सर, अरे कितना सा मसाला है वो, उसमें डायरेक्टली करेगा तो फैक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन नाउ द कंटेंट इज इंक्रीजिंग ना, सो फोकस ऑन दैट एलिमेंट। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, यू अंडरस्टूड द फैक्ट को कैसे मर्ज करना है मालिक, है ना मालिक, ठीक है, ओके। दिस पार्ट यू विल बी लीविंग इट आउट, 4.8 पे आ जाइए, ये पोर्शन को अभी नहीं देखेंगे, एनसॉफ भाई साहब को बाद में देखेंगे, एनसॉफ, ओके, एगोर एच एनसॉफ, ये एक नाम है, ओके, जो स्ट्रैटेजिस्ट है, इनके जो 4 एग्जांपल, ये एग्जांपल अपन डिस्कस किया, लेकिन विल डिस्कस इन लेटर स्टेज, नॉट राइट नाउ। तो एनसॉफ भाई का मैट्रिक्स बाद में देखेंगे। कम टू दिस एक्सपेंशन और ग्रोथ थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, द पैराग्राफ विच इज देयर ऑन 4.8, ओके, 4.8 will be used as a base only.
सर व्हेन वी नीड टू राइट दिस पैराग्राफ एंड दिस पर्टिकुलर आंसर, एंड इसमें भी एक्सपेंशन थ्रू इनोवेशन, मतलब मैं हाईलाइट करूंगा, ये आपको खाली सिर्फ एक अंडरस्टैंड करना है लिखने वक्त, बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ओके, तो टेक्निकली सुन लीजिए मालिक, पहले एक बार फ्लो करिए, गो थ्रू करिए। डाइवर्सिफिकेशन इज डिफाइंड एज एन एंट्री इनटू, न्यू वर्ड आया, रिलेटेड आया क्या, न्यू आया, एंड उसके बाद न्यू सर्विसेज और न्यू markets. What is the difference from yesterday's answers compared to today's answer? Everything is new. Yesterday the word were related, current. Today is completely new, new wala scenario, involving substantially different skills, technology and knowledge. ठीक है मालिक, ये पहला डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं लोग। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? अब यहां पर आगे जाइए, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाइए, डाइवर्सिफिकेशन को कॉन्सेप्चुअली देखेंगे। ओके, तो डिफरेंट स्किल्स का पॉइंट दिखने का। अब अगला क्या दिख रहा है, देखो, व्हेन एन एस्टैब्लिश्ड फर्म इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट विथ लिटिल और नो एफिनिटी, एफिनिटी मतलब रिलेशन, विथ इट्स प्रेजेंट प्रोडक्ट लाइन and which is meant for new class of customer different from firm's existing customer group, the process is known as कौन सा डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट। यानी ये पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है, यानी तुम्हारा जो नया प्रोडक्ट है और पुराना प्रोडक्ट है इसका कोई लेना देना नहीं है, बात खत्म। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ओल्ड एंड न्यू प्रोडक्ट। ओके, तो कॉन्ग्लोमरेट का डेफिनेशन, both the technology of the product and the market are different from the firm's present experience. I hope PTM में से TM समझ में आ रहा है। TM का फुल फॉर्म टेक्नोलॉजी एंड मार्केट। ये तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस क्या लेने, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट। ओके, टेक्नोलॉजी जो है और मार्केट जो है ये रिलेशन ही नहीं है। तो मेरे को बताओ ये पैराग्राफ किसका है, कॉन्ग्लोमरेट। तो मेरे को बताओ, मैं डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर आंसर लिखने बोल रहा हूं, आई एम टेलिंग यू टू राइट आंसर ऑन डाइवर्सिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें सब नया 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 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप जो लिखोगे किसका डेफिनेशन लिखोगे, कॉन्ग्लोमरेट। फिर अब मेरे को बताओ, कॉन्ग्लोमरेट ही खाली है या कॉन्सेंट्रिक भी है, कॉन्सेंट्रिक भी है ना मालिक, ठीक है। तो अगला लाइन, अगला पॉइंट पढ़ो, अगला लाइन पढ़ो। फॉर सम फर्म्स डाइवर्सिफिकेशन इज मीन ऑफ यूटिलाइजिंग देयर फैसिलिटी एंड कैपेबिलिटीज इन मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, यानी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज और फैसिलिटीज को तोड़ यूज करना है। दे मे हैव, उनके पास क्या है, एक्सेस कैपेसिटी, कैपेबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सेस होगा, फंड्स ज्यादा होंगे, मार्केटिंग चैनल ज्यादा होंगे, कॉम्पिटिटिव स्टैंडिंग ज्यादा होगी, मार्केटिंग प्रेस्टीज ज्यादा होगी, मैनेजरल मैन पावर ज्यादा होगा, R&D बहुत तोड़ होगा, रॉ मटेरियल बहुत होगा, एंड सो ऑन एक्सेट्रा। मतलब तो इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो कीवर्ड्स क्या क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा होगा, R&D बहुत अच्छा होगा, फंड ज्यादा होंगे, मैन पावर ज्यादा होगा। ओके, दिस इज समथिंग ज्यादा। तो इसीलिए अनदर रीजन फॉर डाइवर्सिफिकेशन इज वन मोर वर्ड दैट इज कॉल्ड विच एडवांटेज, व्हाट इज सिनर्जेटिक एडवांटेज, साथ में। कॉन्ग्लोमरेट में साथ का लॉजिक नहीं होता है, कॉन्ग्लोमरेट में साथ का लॉजिक नहीं होता है, कॉन्ग्लोमरेट में साथ का लॉजिक, सिनर्जी एडवांटेज कब आता है, कॉन्सेंट्रिक, रिमेंबर दैट वन। तो ऊपर जब अपन ने ऊपर का पैराग्राफ देखा, सबको पैराग्राफ समझ में आ रहा है, पिछले पेज का पैराग्राफ देखोगे तो कहीं पर भी इस पैराग्राफ में सिनर्जी लिखा है क्या, लेकिन नीचे जैसे ही रिलेशन आ गया हमने कौन सा वर्ड यूज किया, सिनर्जी। इट मे बी पॉसिबल टू इंप्रूव द सेल्स प्रॉफिट ऑफ एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट बाय एडिंग सुटेबली, वर्ड कौन सा, रिलेटेड और न्यू प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ लिंकेज इन टेक्नोलॉजी एंड मार्केट। तो मेरे को बताओ, डाइवर्सिफिकेशन पे जब भी आपको आंसर लिखने को आए तो क्या लिखोगे, सबसे पहला क्वेश्चन, आई एम आस्किंग ए डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन डाइवर्सिफिकेशन, एक्सप्लेन डाइवर्सिफिकेशन। तो सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन को समझाओगे, न्यू न्यू न्यू, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस, न्यू मार्केट, ये क्लियर। इसके बाद किसको समझाओगे, कॉन्ग्लोमरेट। सिनर्जी का वर्ड यूज नहीं करोगे, उधर बोलोगे, लेकिन उधर पीटीएम की जगह दो वर्ड इन्होंने यूज किए, कौन से दो वर्ड, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट। ये दोनों क्या है, सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट। आफ्टर दैट आप किसको समझाओगे, कॉन्सेंट्रिक। लेकिन कॉन्सेंट्रिक को समझाते हुए यहां पर आप बोलोगे कि मेरे पास फैसिलिटी ज्यादा है, फैसिलिटी कौन सी ज्यादा है, मेरे पास कंपिटेंसी एंड कैपेबिलिटी ज्यादा है, कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग, फंड्स, ओके, मार्केटिंग, ओके, R&D, ये सब ज्यादा है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट मालिक। एंड उसके बाद आप बोलोगे ये सब करना क्यों है, सिनर्जी के लिए। और सिनर्जी जो आएगी डेफिनेटली लिंक होना चाहिए किसके साथ, दो वर्ड से, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट। सर क्या हम इधर पीटीएम लिख देंगे, मतलब अगर बाई चांस याद नहीं रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है, सिलेबस जैसे आगे बढ़ते जाएगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज, कैन वी राइट पीटीएम हियर, यू मे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टेक्निकली इट में हैपन, प्रोसेस में भी सिमिलर। तो इसके लिए इन्होंने वर्डिंग्स की इसमें ये एम्फसाइज किया हुआ है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन आर देयर, कौन सा दो टाइप, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे देखिए, आगे पढ़िए।
Based on the nature and extent of their relationship to existing business, diversification can be classified on how many categories? 2. नाम देखो, फटाफट पढ़ो. Concentric, conglomerate, and और एक तीसरा नाम क्या दिख रहा है? ओके, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. ये लोग बोले 2 डाइवर्सिफिकेशन है और तीसरा और एक इनोवेशन नाम दे रहे हैं. तो टेक्निकली आपको ध्यान रखना है, इनोवेशन कैन बी अप्लाइड आइदर इन कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट बेस्ड ऑन. वापस ये पहली वाली लाइन देखो, मैं मिटा रहा हूं. और यू जस्ट चेक इट ऑन दिस लाइन. ये चेक ऑन दिस लाइन ना मालिक, ये चेक ऑन ग्रीन वाला लाइन. चेक ऑन ग्रीन वाला लाइन वंस अगेन. बेस्ड ऑन nature and extent of their relationship to existing business, diversification can be classified of how many categories? तो मेरा क्वेश्चन ये 2 कैटेगरीज का बेस क्या है? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ देयर रिलेशनशिप टू एग्जिस्टिंग बिजनेस से कितना रिलेशन रखता है नया बिजनेस, दैट इज द बेस एंड दैट इज ऑफ 2 टाइप. बट वन मोर डाइवर्सिफिकेशन पार्ट इज इनोवेशन. तो अगर रिलेटेड टू बिजनेस है तो कॉन्सेंट्रिक, अनरिलेटेड है तो कॉन्ग्लोमरेट. लेकिन कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट हो, वन मोर डाइवर्सिफिकेशन कैन बी इनोवेशन. व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनोवेशन? नया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कुछ निकाल रहे हैं. एग्जांपल मेरे को बताओ, लाइट में, इलेक्ट्रिसिटी में क्या कोल जला रहे हैं हम लोग? कोल, लाइट जो आ रही है क्या इसमें कोल जल रहा है क्या? कोयला, कोल, आई होप यू आर अवेयर. कोयला जब जल रहा है क्या एनवायरमेंट को डैमेज कर रहा है? अच्छा, कोयला भी क्या अनशन अवेलेबल है या वो नेचुरल रिसोर्स है? कभी ना कभी तो खत्म होएगा. तो हम कौन से मेथड पे जा रहे हैं? हम कौन से इस पे जा रहे हैं अभी? एक थर्मल वाला कॉन्सेप्ट है और सोलार. सोलार इज वेरी कॉमन. Nowadays, if we focus on almost maximum building, at least for building lights, they will be having solar energy. Okay, now tell me this solar energy is nothing but innovation. तो हम अगर कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी प्रोडक्ट जो लिंकेज है, जो भी है, वो प्रोडक्ट में कुछ नया आए, बेहतर आए, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, उसको हम नाम क्या देंगे? इनोवेशन. तो मेरा टेक्निकल आंसर मेरे को बताइए. टेक्निकल आंसर. If I discuss with you diversification, how many types? 2 types. कौन से? Concentric, conglomerate. But can there be innovation also? Yes. But innovation is a part of any diversification. तो सर मैंने क्या लिखना है? ओके, तो टेक्निकली आरटीपी ने तीसरा पॉइंट भी लिखा हुआ है. सर ये क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपको आरटीपी में मिल जाएगा. आरटीपी ओके, आपकी सितंबर 24 वाली. ये आरटीपी सितंबर 24 का क्वेश्चन है. अच्छा सर, डाइवर्सिफिकेशन कभी अच्छा आगे वाले क्वेश्चन आने बाकी है. क्या डाइवर्सिफिकेशन होलसेल आ सकता है एक साथ में? खाली इतना सा अपडेट कर दो. ओके, पेज नंबर पहले वाले पे आओ, 4.8 पे डाइवर्सिफिकेशन. ओके, मई 22 में ये क्वेश्चन आया था डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर. और आपको ये आरटीपी 3 आरटीपी मिलेगा. आरटीपी मई नवंबर 21 कोविड के बाद वाला, मई 22 एंड और एक रहेगा मई 23. This is nothing to do with vertical horizontal. This is only with answer what? Diversification. I hope Jibing Malik. ठीक है. ओके, वन छोटा सा पॉइंट. ओके, होमवर्क जो आपको देखना है, ओके, ये पढ़ के आना है जिसमें मैंने आपको 4 कीवर्ड्स पढ़ाए हैं. कम टू द पेज नंबर 4.9. ये पढ़ना है जिसके अंदर 4 कीवर्ड्स. आई होप यू रिमेंबर 4 कीवर्ड्स, आराम से याद आएगा. एंड वर्टिकल में ओके, आपका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें वर्टिकल के बारे में लिखा है. ये आपको क्लोज करना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड. और कल अपन लिखेंगे एंड विल एंटर इनटू मर्जर्स एंड एक्विजिशन. तो कल ये खत्म करते ही अपन कौन सा कॉन्सेप्ट करेंगे लिखने के बाद? मर्जर एक्विजिशंस. वी स्मार्ट के चैनल पे जाए. हाँ, दिख ही नहीं रहे.